ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਇਕੱਲਾ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕੁੜੀ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਹੋਈ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਕਸੁਅਲ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਹਿਲਾ ਪਰਸਨ ਮੈਡਮ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਜੀ ਨੇ ਮੈਟਰ ਫੜਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਬਲਕਿ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਇਕੱਲਾ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬਲਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕਦੇ ਨੇ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਹੋਈ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਾੜੀ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਫਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਅੱਗ ਵਾਂਗ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੀ ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਸੁਣ ਲਓ। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ एवरीवन, ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਸੰਜੀਦਾ ਮੈਟਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹੀ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਲਗਾਈ ਸੀ ਕਿ ਉਧਰ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਕਸੁਅਲ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਸੰਜੀਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਦੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਆਏ, ਕੁਝ ਨੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਬਿਟੀਆ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਕਿ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਉਹਨੇ ਦਸੀਆਂ, ਐਕਚੁਅਲ ਰਿਐਲਿਟੀ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਧਰ ਦੀ ਦੱਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਈਆਂ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗੀ ਏ ਵੌਇਸ ਮੇਲ ਤੇ। ਉਹਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੋਪਨੀय ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਰਿਐਲਿਟੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ। 2-3 ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ और ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਬੀਇੰਗ ਅ ਡਾਟਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਮ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਧਰ ਵੈਲ ਸੈਟਲਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏ ਤੇ ਮੈਂ ਪੱਕਾ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬੱਚੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਟਲ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਈਆਂ ਪਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਿਆ, ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਔਰ ਰਿਐਲਿਟੀ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਕਈ ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਰਿਪੋਰਟ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲਾਈਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗੀ। ਹੈਲੋ ਬੇਟਾ ਜੀ। हेलो मैम, गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू बेटा? How are you बेटा? हाँ जी मैम। How are you? आप कैसे हो? मैम मैं ठीक हूँ। हाँ, थैंक यू। अब बेटा बताओ कि जो ये न्यूज़पेपर, कनाडा के न्यूज़पेपर ने एक रिपोर्ट में लिखा था कि पंजाब की डॉटर्स के बारे में जो आपने मेरे से शेयर किया था, मैं आपके थ्रू थोड़ा सा लोगों को अवेयरनेस के लिए बताना चाहती हूँ कि एक्चुअल में इसमें कितनी रियलिटी है। हाँ जी मैम, बिल्कुल। तो मैम ये कोई 5 साल पुरानी बात है जब मैं फर्स्ट टाइम बाहर आई थी। तो ऐसी आपस में पढ़ते हुए जान पहचान होती है किसी से, तो मैं मिली एक इंसान से। तो उस टाइम मैसेजिंग एप्स चलते थे सारे, तो बातचीत होती थी उस इंसान से। तो एक दिन मैंने देखा कि सामने फोन पड़ा था और फोन पे जैसे हम शादी के लिए पिक्चर्स खिंचवाते हैं, राइट, लड़कियां जब मैट्रिमोनियल के लिए खिंचवाती हैं, तो पिक्चर्स बार बार ये फोन बज रहा था। तो डेफिनेटली थोड़ा अजीब लगा, तो देखा, पूछा कि इतने ये कैसे पिक्चर्स हैं, तो सामने वाले ने इग्नोर कर दी। मुझे
रिस्पॉन्ड ही नहीं किया। और मैंने पूछा भी, इंसिस्ट किया 2-3 बार कि नहीं बताओ है क्या ये, तो सामने वाले ने इतना जवाब ढंग से नहीं दिया मुझे। फिर मुझे लगा चलो ठीक है कोई बात नहीं। अगले थोड़े दिनों बाद सेम पर्सन की, सेम इंसान की मैंने गाड़ी खोल के देखी, तो उसमें कुछ अजीब सा ही सामान पड़ा था, जो कि एक ठीक नॉर्मल सामान नहीं था वो। तो मैंने बस उसको देखकर बंद कर दी गाड़ी, और मैं अपना सोच में पड़ गई कि ये हो क्या रहा है, ये चल क्या रहा है। दिन बीतते गए, उसके बाद नेक्स्ट 1 वीक 10 दिन बाद फिर से दोबारा से मेरे सामने वही पिक्चर्स, बट इस टाइम पिक्चर्स जो थी वो कम्प्लीटली डिफरेंट थी। वो पिक्चर्स दोबारा आई, मैंने वो फोन उठा लिया और मुझे अजीब लगा कि नहीं ऐसा नॉर्मली नहीं होता है। वो मैसेजिंग ऐप खोल के देखा, तो मैंने सामने वाले से क्वेश्चन किया कि ये चल क्या रहा है, और उसमें जो मैंने देखा वो बहुत ही अजीब था। ऊपर लिखा हुआ था शमीम ऑफ पंजाब समथिंग करके ग्रुप बना हुआ था। अजीब ही ग्रुप था, कुछ अलग ही पिक्चर्स उसमें जो है आ रही थी। तो इतना इंसिस्ट करने के बाद, लड़ने के बाद, उस बंदे ने सामने मुझे आके बोला कि ऐसा ऐसा ये ग्रुप है, यहाँ पे लड़कियों की पिक्चर्स आती हैं, और जो लड़कियां थोड़ी मजबूर होती हैं या नहीं होता कुछ अपना जिंदगी जीवन जीने के लिए रिसोर्सेज नहीं होते, तो वो लड़कियां हम अपलोड कर देते हैं, और फिर कोई ना कोई इंसान आके आगे जो भी है कहानी बढ़ती है। तो मैम डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं सच है कि 18 से 24 के बीच में लड़कियां इतनी वल्नरेबल होती हैं, यहाँ पर आके जिंदगी इतनी आसान नहीं है। एंड ऊपर से आप यहाँ पे जाते हो, शिफ्टों के लिए जाते हो, कईयों को तो काम मिल जाता है, बट जिनको नहीं मिलता उनके लिए जिंदगी जो है मुश्किल हो जाती है। तो बेटा ये जो है न्यूज़पेपर में लगा था कि रिलीजियस जगह से, कॉलेज के बाहर से, या जो लड़कियां फीस नहीं पे कर पाती, या जिनको फैमिली सपोर्ट पीछे से नहीं मिल पाता, तो मोस्ट ऑफ द गर्ल्स वो है इसमें। हाँ जी मैम, डेफिनेटली। अब जो तो पीछे से फाइनेंशियली बैकग्राउंड स्ट्रांग है, उनको तो जरूरत नहीं है। अगर बाई चांस यहाँ नहीं भी काम मिला तो पैसे पीछे से आ जाते हैं, लेकिन जो यहाँ पर एक लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ, थोड़े पैसों के साथ आते हैं, उनको तो यहाँ काम करना ही पड़ता है। नहीं, काम तो बेटा सबको ही बाहर जाके करना पड़ता है। फीस भरने के लिए, अपने और खर्चे चलाने के लिए, जिंदगी तो इतनी यहाँ पे आसान नहीं है। तो आपके साथ भी कुछ ऐसा किसी ने करने की कोशिश की थी? मैम मुश्किलें मुझे बहुत आई थी कि पहले जब मैं शिफ्टों पे जाती थी, तो कभी कभी तो पहले 1 साल में सिर्फ 5 घंटे काम मिलता था, 7 घंटे काम मिलता था, कभी कभी तो मिलता ही नहीं था। तो बहुत मुश्किलें थी, इतनी मुश्किल से किराया निकलता था कभी कभी तो। लेकिन फिर धीरे धीरे करके 2-3 साल इंसान के कॉन्टैक्ट्स बनते हैं, और आप थोड़ा सेटल डाउन हो जाते हो, तो चीजें हल्की सी आसान होती हैं, लेकिन स्टार्टिंग डेज तो मुश्किल होती हैं। तो आपको ये लगता है कि पंजाब से जो गर्ल्स जाती हैं उनको ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, और पंजाब के ही लोग उनको मिसयूज करते हैं, गलत रास्ता दिखाते हैं? मैम सबको प्रॉब्लम नहीं आती। अब जिनको एक्सपोजर है थोड़ा बहुत, तो डेफिनेटली वो एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन जिनको बिल्कुल भी नहीं पता, कभी कुछ देखा ही नहीं, एक्सपोजर बिल्कुल भी नहीं है, उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। अब यहाँ पे ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके लिए जिंदगी बहुत अच्छी है एंड एंजॉय करते हैं, लेकिन डेफिनेटली जिनको एक्सपोजर कम है, डिफिकल्टीज थोड़ी बहुत तो आती हैं उनको। पर जो आपने मुझे बताया था कि आप किसी के घर में रहते थे, वो लेडी का यही काम था, वो ऐसे गर्ल्स को भेजती थी, फिर आपके दोस्तों ने बताया तो आपने उस लेडी का घर छोड़ दिया, तो ऐसे? हाँ जी मैम, तो ये भी एक एक्सपीरियंस हुआ था मेरे साथ। ये भी आज से 4 साल पुरानी बात है। एक घर में मैं रहती थी, वो लेडी थी अपनी हमारे जैसी थी, एंड उनकी फैमिली सब बहुत अच्छे थे, लेकिन मैं जानती नहीं थी, मैं तो उनके घर में रह रही थी, लेकिन वो मुझसे अजीब तरीके की बातें करती थी, और वो अलग अलग घर में लोगों को बुलाती थी, तो अजीब लगता था। लेकिन अब सामने वाले का घर है तो मैं क्या बोल सकती थी, मैं तो अपने एक कमरे में रहती थी। तो एक दिन मैं उस लेडी के साथ बाहर जा रही थी शॉपिंग करने के लिए, तो मेरे कुछ क्लासमेट्स ने मुझे देखा और बोला कि आप उस लेडी के साथ क्या कर रहे थे।
तो मैंने बोला कि नहीं, मैं तो शॉपिंग करने जा रही थी। तो वहां पे उन्होंने मुझे बताया कि ये लेडी जो है ये तो लड़कियों के साथ ये सब करती हैं, उनको अलग अलग मेन से मिलवाती हैं, बंदों से मिलवाती हैं, तो आपको नहीं जाना चाहिए। तो दैट्स इट, वही एक आखिरी महीना था और मैं वहां से चली गई उसके बाद। चलो बेटा, थैंक यू सो मच। आपने जो मुझे पहले भी बताया कि ऐसी मुश्किलें जो लड़कियां स्ट्रॉन्ग हैं और जिनको फैमिली सपोर्ट है उनके लिए रहा आसान है, अदरवाइज जो बेचारी बिल्कुल ही जिनको यहाँ से एक्सपोजर नहीं मिला मुश्किल है। चलो हम उम्मीद करते हैं आप अपनी लाइफ में सेटल हो चुके हो। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं आपको बेटा, हम टच में रहेंगे। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू बेटा, थैंक यू। ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਸੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਉਧਰ ਦੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਬਾਰੇ। ਪਰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜੇ, ਨਹੀਂ ਹਿੰਮਤ ਜੁਟਾ ਪਈਆਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀਆਂ। ਅਫਕੋਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਨ ਧੀਆਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਭੇਜੋ ਜ਼ਰੂਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ। ਜੇ ਬੱਚੇ बाहर जाके कुछ अलग तो करना चाहते ने, स्टडी बेस ते या काम करने वास्ते जाना चाहते ने, जरूर भेजो। पर घट तो घट बच्चों के टच च रहो पूरा। उन्होंने फाइनैंशली भी जब तक बच्चे सैटअप नहीं हो जाते, सैट नहीं हो जाते, उधर जाके पूरी तरह तक इंडिपेंडेंट नहीं हो जाते, फाइनैंशली भी सपोर्ट ना करो। मैं कुछ पेरेंट्स नु देखिया जेड़े जेड़े 15-20 लाख रुपया ला के अपने बच्चों को भेज देंगे ने, और उस तो बाद 2 महीने बाद ही प्रेशर बनाना शुरू कर देंगे ने कि भेजो पैसे, भेजो पैसे। कित्थों भेजणगे पैसे? इस चीज नू साडे पंजाबी पेरेंट्स नू कंसीडर करना पएगा कि बहुत है उधर दी अलग दी दुनिया। कई बारी बच्चों को काम ही नहीं मिलता, जिस तरह इस बिटिया ने सानू दसिया कि कई बारी 5-5 7-7 घंटे की शिफ्ट होती है और कई बारी काम मिलता ही नहीं। तो इस चीज नू साडे पेरेंट्स नू समझना पएगा, बड़ा संजीदा मुद्दा है। आपां अपनी स्टेट गवर्नमेंट दे थ्रू, भारत सरकार दे थ्रू बाहर दी कैनेडियन गवर्नमेंट नू भी लिखांगे कि यह मामला थोड़ा जा ध्यान देन योग्य है। मैं नहीं चाहती साडी पंजाब दी धीआं दे नाल कोई भी मुश्किल होए। और हुण चीज़ां शायद 3-4 साल पुरानियां कुछ चीज़ां भी ने, पर कुछ बच्चे अपनी भी अपना जड़ा मोरल सपोर्ट एकदम थल्ले सुट देंदे ने, या उधर दी ग्लैमरस लाइफ उन्होंने अट्रैक्ट कर दी है। कुछ ऐदा दे भी बच्चे ने जड़े अपने कंसेंट दे नाल राह भटक जाते हैं। तो पेरेंट्स नू देखना होएगा कि साडे बच्चे किन्ने को स्ट्रोंग ने, किन्नी को बाउंड्री क्रॉस कर सकते हैं और साडा ट्रस्ट कित्थे स्टैंड करता है। अपील है और उम्मीद करदी हां तुसीं यह मैसेज मेरा वध तो वध पेरेंट्स दे नाल अगे शेयर करोगे, ताकि पेरेंट्स नू यह समझ आ सके कि बच्चों नू बाहर भेज के ही अपनी जिम्मेदारी तो मुक्त नहीं हो सकते। थैंक यू। जय हिंद।